Hello students, as I told you last time, in the next video I will teach you about the letter of placing an order. And in the last 3 or 4 videos, uh, you have learnt about the types of letters. Now in this video, you will learn about the last type of letter, that is called letter of placing an order. But before starting this, I want to say something. Students, I have just checked my channel and I have seen there are only 74 subscribers on my channel. Actually students, I think in class 10th, approximate 100 plus students now, but only 74 subscribers are there. And what the other students, what the rest of the students are doing, and I have seen only and have checked only 57 students, so only 57 व्यूज़ ओनली ऑन द वीडियोज़ ऑफ टुडे. जो वीडियो मैंने आज अपलोड की है, लेटर ऑफ कंप्लेंट पार्ट 2, देर वर ओनली 57 व्यूज़ एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 10 आई थिंक 100 प्लस. So what the other students are doing, I'm very amazed and I'm very astonished about that. And I have given a little bit homework in that last video. Okay, you have to just distinct and distinguish the and find out the difference between continual and continuously. So only 3 students have replied that, and in last video I have just given the homework. You have to write 2 letters in that homework, and I think only 2 students send me that homework, and 2 students send me the pic, and whatever send me the pic to correct their mistakes. So only 2 students did effort about that. So students, what are you doing? All the teachers are working hard for you, otherwise we can take rest and we can enjoy our quarantine like you. But we all are doing hard work for you, and we all are making videos and recording videos for all of you. That's why you can comfortably sit at your home, and you can easily learn, and you can easily study. So students, make responsible and take seriously about that, and think seriously about that, and listen. And all students, please listen the video and be serious about the homework also. Homework should be done at the time. Okay students, now you have the lots of time at your home to study, so utilize that time. Don't waste and don't pass that time. Okay students, and I was really shocked when I have seen only 57 views on the last videos. What the rest of students are doing now, I'm very amazed about that. Okay students, I hope this video will be shown by all the students, and the subscribers will be increased. It doesn't matter you subscribe or not, but minimum you have to watch the video. Okay students, I hope you will improve yourselves. Now I start my topic, letter of placing an order. Students, nowadays, as you know, there are many ways and there are many sources uh, to order your things. As you know, there are many sites like Flipkart, Amazon, etc. But in ancient time, before the inventing of these sites, we use the medium of letter. So that type of letter you are going to study about. Okay, so that is letter of placing an order. Here is the question, look it very carefully. Your school is planning to organize musical shows next month on the occasion of Janmashtami. Students, assume that कि दिस इज़ योर मंथ इज़ गोइंग ऑन अगस्त. सो आपका जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, आपका जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक म्यूजिकल शो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मंथ जो आपका एक म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज कर रहा है नेक्स्ट मंथ ऑन द ओकेशन ऑफ जन्माष्टमी स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं. तो जन्माष्टमी जो आपकी मोस्टली सितंबर और अगस्त में आती है, तो आपकी जन्माष्टमी के लिए एक म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्कूल, प्लान कर रहा है एक्चुअली ऑर्गेनाइज करने का. एंड यू आर मितांशी और प्रणव, द म्यूजिक टीचर ऑफ ग्रेट हाइट्स स्कूल
55 द्वारका अहमदाबाद। और आप क्या हैं, आप या तो मितांशी हैं या प्रणव हैं, और आप ये ग्रेट हाइट स्कूल जो है जो आपका द्वारका अहमदाबाद में है, आप उसके एक म्यूज़िक टीचर हैं। एंड यू रिक्वायर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इवेंट्स। और आपको उस इवेंट की स्मूथ रनिंग के लिए, जिससे वो इवेंट अच्छा हो सके, और उस इवेंट की स्मूथ रनिंग के लिए आपको कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट है। राइट अ लेटर टू द स्टोर मैनेजर। और आपको स्टोर मैनेजर के लिए लेटर लिखना है। और मैसर्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैसर्स के बारे में। नाउ द होमवर्क इज योर्स इन दिस वीडियो, यू हैव टू राइट अबाउट द मैसर्स, व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट इन द लास्ट वीडियो। ओके, तो मैसर्स संगीत इंस्ट्रूमेंट्स उनकी फर्म का नाम है, शॉप का नाम है, दयानगर अहमदाबाद। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय यू। और एज अ म्यूज़िक टीचर ऑफ द स्कूल ग्रेट हाइट स्कूल, आपको उसके म्यूज़िक टीचर होने के डेजिग्नेशन से, उसके म्यूज़िक टीचर होने के बिहाफ पे आपको एक लेटर लिखना है। और जो आपके इवेंट जो आप नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं उसकी स्मूथ रनिंग के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी आपके ऑर्डर प्लेस करने वाले जो भी आपके लेटर्स आते हैं, वो लेटर्स कभी आपके पर्सनल बिहाफ पे नहीं आते कि आप घर पे बैठे हुए और आपको शर्ट्स ऑर्डर करनी है, या आपको अपने लिए आयरन ऑर्डर करनी है, या आपको अपने लिए व्हाटएवर कोई भी कमोडिटी ऑर्डर करनी है, तो या कोई भी आर्टिकल या कोई भी अप्लायंस ऑर्डर करना है, तो इस टाइप के आपको नहीं आते हैं। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ एनी स्कूल, एक स्कूल के किसी भी एम्प्लॉय के बिहाफ पे ही आपको ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ पे लेटर देखने को मिलेगा। और उसमें आपको कुछ भी बनाया जा सकता है। सपोज दैट you would be a librarian and you would be the order of books for library, and you would be a music teacher, you would be a gym head captain, you would be a gymnastic captain, and you would be a medical in charge, and required some medicines and other things. So students, इस तरीके के आपको लेटर्स देखने को मिलेंगे, and in this letter now you are as a music teacher. So first of all, firstly what we do, first we will write sender's address. So sender's address, students, keep in mind that कि आपका पर्सनल एड्रेस यहाँ पे नहीं आएगा। जिस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्कूल के आप टीचर हैं, उस स्कूल का एड्रेस आएगा। फर्स्टली उस स्कूल का नेम आएगा, जैसे कि आपके स्कूल का नेम है ग्रेट हाइट्स एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, ग्रेट हाइट्स एकेडमी ये आपके स्कूल का नेम है। बाय मिस्टेक ऊपर स्कूल हो गया है, डजेंट मैटर, आप स्कूल भी लिख सकते हो। तो ग्रेट हाइट्स एकेडमी। नेक्स्ट लाइन आपके उसका एड्रेस है 55 द्वारका। इन द नेक्स्ट लाइन द सिटी नेम अहमदाबाद। लीविंग वन लाइन 12th August 2020, we assume this date. Okay. In the next line, receiver's designation, the store manager, Messrs Sangeet Instruments. Okay students. उसके बाद आपका दयानगर, आपका एड्रेस एंड स्टूडेंट्स, and after that your city name. After that, subject, order for musical instruments. It's a very short subject. You don't have to write extravagant in this subject, but you have to just write order for whatever article you are going to order. Okay, order for musical instruments, order for medical medicines, order for gym articles, whatever. Okay, so after that, sir, salutation. Starting इसकी कैसे होती है? Beginning. एज अ म्यूज़िक टीचर ऑफ ग्रेट हाइट स्कूल, आप बताते हो कि एक ग्रेट हाइट स्कूल के म्यूज़िक टीचर होने के बिहाफ पर के नाते आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, और स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज म्यूज़िकल शोज़। हमारा जो स्कूल है वो एक म्यूज़िकल शोज़ ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। किस ओकेशन पे? जन्माष्टमी के ओकेशन पे, जो नेक्स्ट मंथ है। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट होल सेल सप्लायर्स, और आप कह रहे हैं उस शॉप से जिस फर्म से आपको ये मंगाने हैं, कि आप उससे कह रहे हैं कि और आप उसी को इतने सारे, मतलब वहाँ पे और भी हो सकती हैं शॉप्स, और भी वहाँ पे उसके
सेलर्स हो सकते हैं, तो आप उसको ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट होल सेल सप्लायर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े, जितने भी वहाँ पे हैं, सबसे बड़े होल सेल सप्लायर हैं। होल सेल सप्लायर इट मीन्स, आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जो रिटेल में ना देखे, होल सेल में, जिसके पास बहुत सारा सामान होता है, जो होल सेल करता है, जिससे रिटेल वाले ले जाते हैं छोटा मोटा सामान और अपनी शॉप पे बेचते हैं। तो ये आप होल सेल सप्लायर हैं जो आपको सही कीमत पे, सही प्राइस पे आपको दे सकता है। तो आप कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े होल सेल सप्लायर्स हैं हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किसके? जो हाथों से द्वारा बनाए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, अहमदाबाद में। एंड ऑफर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज, और आप क्या हैं? आप सबसे अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, मतलब अगर हम कंपटीशन करें और सेलर से या और शॉप से, तो आप उनके कंपटीशन में सबसे अच्छे प्राइस ऑफर करते हैं। एंड प्रॉम्प्ट सर्विसेज, प्रॉम्प्ट मीन्स सम डन विदाउट डिले, बिना किसी देरी के आप बिल्कुल टाइम टू टाइम डिलीवरी करते हैं, बिल्कुल टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं। सो आई विश टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इवेंट्स। तो आप कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर करना चाहता हूँ इस जो हम शोज़ करने वाले हैं, शो के स्मूथ रनिंग के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर में, बस आप सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, आप बताते हैं सिंपली कि मैं उस स्कूल से लाइब्रेरियन हूँ या वटेवर मैं जो भी हूँ, और हमारा रीज़न, आप हमें रीज़न बताते हैं कि हमारे रीज़न ये है, हमारे यहाँ नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ ये होने वाला है, इस रीज़न की वजह से हमें इस चीज़ की नीड है, और आप फिर डायरेक्ट अपने ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं। ज़्यादा इसमें आपको कुछ खास लिखना नहीं होता है, ना इसकी नीड होती है। ओके, तो आप यहाँ पर द ऑर्डर इज़ एज फॉलोज, ऑर्डर आप स्टूडेंट्स इस तरीके से बताते हैं, यू हैव टू मेक अ टेबल लाइक दैट, ओके, लाइक सीरियल नंबर, इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रांड, क्वांटिटी। ओके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जो भी नीड है आपको अपने आर्टिकल्स की, आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स की। सितार कंपनी ए 4 की रिक्वायरमेंट है, हारमोनियम टेंगलवुड कंपनी 8 की रिक्वायरमेंट है। लाइक आप ऐसे जो भी आपको कंपनी आप बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कंपनी पता नहीं है तो डजेंट मैटर, आप इसमें ब्रांड वाला ऑप्शन नहीं बनाते, आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी, अब आपका देखिए स्टूडेंट्स, जैसे को पता है कि आपका लेटर 3 पैराग्राफ्स में होता है, तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ आप इवेंट्स तक मान लीजिए, सेकंड पैराग्राफ में आपकी टेबल आ गई, एंड द थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ आपका ये हो गया। ऑल द इंस्ट्रूमेंट शुड बी बबल रैप्ड प्रॉपरली, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से बबल रैप्ड होने चाहिए, ठीक से पैक्ड होने चाहिए, बबल पैक्ड होने चाहिए। As we are the permanent customer of yours, we expect a special discount. स्टूडेंट्स, जो स्कूल होता है कोई भी, तो वो स्कूल जो जहाँ भी कहीं से कुछ भी ऑर्डर करके मंगाता है, चाहे वो बुक्स मंगाता है, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मंगाता है, चाहे वो जिम इक्विपमेंट्स मंगाता है, कुछ भी मंगाता है, उनका एक परमानेंट ही उनकी एक फर्म या परमानेंट ही उनकी एक शॉप होती है, तो आप उनके परमानेंट कस्टमर हैं। तो जब आप एक परमानेंट कस्टमर जिसके होते हैं, तो आप उससे एक स्पेशल डिस्काउंट की भी होप रखते हैं, एक स्पेशल डिस्काउंट आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप एक परमानेंट कस्टमर हैं उसके, और इसीलिए आप उससे कह रहे हैं कि हम इसी नाते हम क्या है, आपसे एक स्पेशल डिस्काउंट को एक्सपेक्ट करते हैं जो औरों से थोड़ा सा स्पेशल होगा। इन केस ऑफ एनी डैमेज इन ट्रांजिट, और अगर ट्रांजिट में कोई डैमेज हो जाता है, ट्रांजिट इट मीन्स द कैरिंग ऑफ पीपल, गुड्स और मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ढोना, जब लोग बाग उस सामान को उठा के, उस मटेरियल को उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस उसमें मतलब लोडिंग करते हैं, ठीक है। तो उस लोडिंग करने में अगर कोई डैमेज हो जाता है, आपकी जो फर्म है, फर्म के वर्कर्स के द्वारा अगर लोडिंग करने में कोई डैमेज हो जाता है, ट्रांजिट इट मीन्स कोई किसी के द्वारा कोई डैमेज हो जाता है, तो इट वुड बी एट योर कॉस्ट पेमेंट। तो ये आपकी कॉस्ट पेमेंट, आपकी जो कॉस्ट है, इट वुड बी एट योर कॉस्ट, सॉरी बेटा, इट वुड बी एट योर कॉस्ट। तो ये आपकी कीमत, मतलब इसकी कीमत आपको ही वसूलनी होगी, इसका हम मतलब इस पर हम कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी देने वाले नहीं हैं, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। पेमेंट वुड बी मेड बाई चेक इन इंटरनेट बैंकिंग वंस द ऑर्डर इज रिसीव्ड। अब यहाँ पे आप बात करेंगे पेमेंट कैसे करना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है। तो पेमेंट वुड बी मेड बाई द चेक, पेमेंट जो है वो चेक के द्वारा किया जाएगा या फिर इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा किया जाएगा, परंतु कब, बस एक बार जब ये ऑर्डर रिसीव कर लिया जाए उसके तुरंत बाद कर दिया जाएगा।
It will be highly appreciated if you deliver that items विद इन अ वीक और टू। स्टूडेंट्स आप कोई ना कोई अपना टाइम लिमिट भी देते हैं कि किस टाइम लिमिट के अंदर आपको वो चीज़ चाहिए, वो आइटम्स चाहिए आपको, तो आप कहोगे कि आप अपने टाइम दे दिया आपने कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स में डिलीवर हो जानी चाहिए। स्टूडेंट्स ये जो आपका लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर होता है, वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं जाता। हाँ कि आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ओके, तो वैसे तो इसमें आपका ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता, लेकिन इसमें मोस्टली 4 थिंग्स को आपको माइंड में रखना है कि आपको इसमें 2-4 चीज़ें आपको मेंशन करनी है, जिससे आपके लेटर के जो वर्ड्स हैं वर्ड्स वो इंक्रीज़ हो सके, अदरवाइज वर्ड्स आपके कम रह जाएंगे। जैसे पैकिंग के बारे में आपको बताना है कि पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। डिस्काउंट को आपको जरूर इंट्रोड्यूस करना है कि हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, परमानेंट कस्टमर हैं, तो आप इतना डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट दें। या फिर आप इसमें ओपन भी कर सकते हैं कि और शॉप्स वाले 10% डिस्काउंट देते हैं तो आप हमें 15% डिस्काउंट दें, इस टाइप से चीज़। और मोड ऑफ पेमेंट भी आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, चेक के थ्रू कर रहे हो, या ड्राफ्ट के थ्रू कर रहे हो। यहाँ पे ये आप बाउंडेड नहीं हो कि आप यही कहो कि एक बार डिलीवरी रिसीव हो जाए जब हम आपको पेमेंट देंगे। आप अपनी विश से भी कह सकते हो कि मैं अभी आपको 5000 का एडवांस पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग के सेंड कर रहा हूँ, या फिर मैं आपको ड्राफ्ट भेज रहा हूँ 5000 का, चेक भेज रहा हूँ। इस टाइप से चीज़ें भी आप लिख के कह सकते हो कि 5000 में आपको एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ, और बाकी का जो द रेस्ट ऑफ पेमेंट है विल बी पेड आफ्टर द डिलीवरी इज़ रिसीव्ड, आफ्टर द मटेरियल इज़ रिसीव, मतलब मटेरियल रिसीव होने के बाद मैं आपको जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो बाद में दे दूँगा। तो ये आपकी विश है स्टूडेंट्स, आप इसमें ओपन हैं, आप कुछ भी अपने पास से फ्री हैं आप लिख सकते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आगे आपका टाइम आपको बताना होगा, क्योंकि आप बाउंडेड हो आपके नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में आपकी कोई ना कोई चीज़ होने वाली है, तो आपको इसमें टाइम को ज़रूर इंट्रोड्यूस करना होगा कि आपको कितने टाइम के अंदर वो ऑर्डर आपको चाहिए ही चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर, 2 वीक्स के अंदर, 3 डेज़ के विद इन 3 डेज़, विद इन 2 वीक्स, विद इन 2 डेज़, वॉट एवर टाइम यू हैव। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से जो है आपका ये लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, और कुछ इसमें ज़्यादा खास है नहीं स्टूडेंट्स। एंड आई से वंस अगेन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। आई एम ऑल्सो observing that in comment section only 2 or 3 students have replied. No one is asking about any query, no one is asking about homework, no one is asking about anything students. It means if you are not asking anything, if you have no query, it means you are not properly studying at your home. So students, read properly, don't waste your time, don't pass your time, just utilize your time and just use worth of your time. Okay students, at last I want to say, keep stay home, keep safe, and keep your life safe. Okay students, goodbye.